जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम. Today we will teach you about present perfect continuous tense. It's very simple and it's very easy. So we will give you lecture about present perfect continuous tense. Here we have definition on the screen. Present perfect continuous tense is used to express the action or task that started in the past and continue in present. Very easy, so simple. The tense or the action which started in the past and continue in the present, that is called present perfect continuous tense. उर्दू में आपको बताऊंगा वो ज़माना जो पास्ट में स्टार्ट हो, गुजरे हुई ज़माने में एक काम गुजरे हुई ज़माने में स्टार्ट हो और मौजूदा वक्त में जारी हो, उससे क्या कहते हैं? उससे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. वंस अगेन, एन एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट, वो एक्शन जो गुजरी हुई ज़माने में स्टार्ट हो एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट, और मौजूदा ज़माने में क्या हो? मौजूदा ज़माने में कंटिन्यू हो, जारी हो. दैट इज कॉल्ड व्हाट? Present perfect continuous tense. Once again, third time, an action which started in past and continue in the present, that is called what? Present perfect continuous tense. Here we have some example. She has been going to school. See, this example means that this action started in the past but still continue in present. She has been going to school. This action started in the past. A girl has been going to school. It means that this action started in the past but still continue in the present, right? She was going to school but still she is going to school. So here we have what? An action which started in past and continue in present, that is called what? Present perfect continuous tense. He has been playing football for a long time. They have been talking for the last hours. You have been talking too much. अच्छा, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, we did not teach about sense and for. We have two sense and for which we can use in present perfect continuous tense. Sense we can use for specific time and for we can use for unspecific time. But it is not important, right? Present perfect continuous tense can be without sense and for. स्पेसिफिक टाइम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए ज़रूरी नहीं है. अगर हम लगाएं दैट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, अगर हम नहीं लगाएं दैट आल्सो विल बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. बट जस्ट आई वांटेड दैट यू शुड नो अबाउट सेंस एंड फॉर दैट वी कैन यूज़ इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, कंटिन्यूस टेंस जितनी भी है उसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. सो दिस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वी कैन आल्सो कॉल इट प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. रिमेंबर, एनी कंटिन्यूस टेंस we can call it what? A progressive tense. So here we have present perfect continuous tense or present perfect progressive tense. Both are same. Now we will go for affirmative sentences or positive sentences. अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है कि हम क्या यूज़ करेंगे. स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हैज़ या हैव लगाएंगे प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट. सी guys, before I told you, whenever continuous tense comes, you must add ing with the first form of verb. Continuous tense, for example, if it is simple present continuous tense, or it is past perfect continuous tense, or it is present perfect continuous tense. So with all continuous tense हम क्या लगाएंगे? सब continuous tense के साथ हम लगाएंगे verb के साथ ing. अच्छा जी, यहाँ पर examples आपके सामने हैं. She has been taking medicine. This section started in past, still continue. I have been playing football and they have been writing a letter. अच्छा जी, यहाँ पर हमने subject she के बाद has been लगाया है और I subject के बाद हमने have been लगाया है. तो इसकी मैं थोड़ी सी explanation करूँगा कि has been कहाँ पर लगाएंगे और have been कहाँ पर लगाएंगे. स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊँगा. So here we have affirmative positive sentences structure once again. So where we will put has, whenever a sentence start from he, she, it or singular name, after then we will put has been, right? जब भी कोई जुमला he, she, it या singular name के साथ start हो उसके साथ हम has been लगाएंगे. अगर एक सेंटेंस I से स्टार्ट है तो उसके साथ हम have लगाएंगे. You, we, they plural names, right? I, you, we, they plural names. इसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैव बीन लगाएंगे. रिमेंबर वंस अगेन, जब भी कोई जुमला ही, शी, एट या सिंगुलर नेम के साथ स्टार्ट हो तो सब्जेक्ट के बाद हम हैज़ बीन लगाएंगे. अगर एक जुमला आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम इसके साथ स्टार्ट हो तो उसके बाद हम हैव बीन लगाएंगे. ये आपने याद रखना है लाजिम. ओके, नाउ वी विल गो फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस. अच्छा जी, नेगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ एक ही चेंजेस करनी है. स्ट्रक्चर आपके सामने है.
subject plus has have plus not plus been plus first form of verb ing plus object. अच्छा जी, आपने सिर्फ एक ही चेंजेस करनी है यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में. आपने सब्जेक्ट के बाद जो हैज़ हैव है उसके बाद आपने नॉट लगाना है, राइट. सो आपका सेंटेंस जो है वो ऑटोमेटिकली अफर्मेटिव से नेगेटिव में आ जाएगा. कब आएगा नेगेटिव में? जब आप हैज़ हैव के बाद नॉट लगाएंगे. It is very important. Negative sentences already we have explained, if we can call it in Urdu, so it's called नफ़ी जुमले या मनफी जुमले, in which we are disagree, जिसमें हम राज़ी नहीं हो. Already I have explained this. Okay. तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपके सामने है. She has not been taking medicine. तो क्या लगा यहाँ पर? हैज़ के बाद हम नॉट लगाएंगे. स्ट्रक्चर में आप ऊपर देख लें, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव के बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे. अब एग्जाम्पल पर फोकस करें. शी हैज़, राइट. तो हैज़ के बाद हमने क्या लगाया? नॉट. शी हैज़ नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल एंड दे हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर. रिमेंबर, for negative sentences you will put just not after has have, so your sentence will change to negative. Now we will go for question or interrogative sentences, जिसको हम उर्दू में सवालिया जुमले कहते हैं. Those sentences in which we ask question from someone. जब भी हम किसी से सवाल पूछते हैं उसे हम क्या कहते हैं? या तो क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. अच्छा जी, स्ट्रक्चर में आपने क्या करना है? जो हैज़ हैव है उसको स्टार्ट में लेके आना है. हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. सब सेम है, सिर्फ आपने क्या करना है? सब्जेक्ट से पहले हैज़ और हैव जो है वो लेके आना है. आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली इंट्रोगेटिव में चेंज होगा. कोई भी आपके साथ अफर्मेटिव सेंटेंस हो उसको आप हैज़ और हैव को स्टार्ट में लेके आओ तो ये इंट्रोगेटिव में चेंज होगा. फॉर एग्जांपल, ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. सामने है आपके एग्जांपल. सबसे पहले क्या है? हैज़ है. इस हैज़ को हम फॉर एग्जांपल इग्नोर कर ले. आप फोकस कर ली. शी हैज़ बीन टेकिंग मेडिसिन, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है. शी हैज़ बीन टेकिंग मेडिसिन, राइट. इंट्रोगेटिव में लेके जाना है. हैज़ को स्टार्ट में लेके आओ. हैज़ शी बीन टेकिंग मेडिसिन. फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट. आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट अफर्मेटिव सेंटेंस है. इसको लेके आओ इंट्रोगेटिव में. हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट. आपने क्या करना है? हैव और हैज़ जो है उसको स्टार्ट में लेके आना है. तो आपका सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, लास्ट में मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूँ. अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंस है आई हैव बीन biting him or I have been beating him, right. I have been beating him affirmative. Negative, I have not been beating him. Interrogative, have I been beating him. तो ये था लेक्चर अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. वंस अगेन रिमेंबर, कोई भी टेंस हो, अगर आप नाम पे फोकस कर ले, टेंस के नाम पे, तो आपको डेफिनेशन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. वो टेंस जो प्रेजेंट भी हो, परफेक्ट भी हो, कंटिन्यूस भी हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं. I have explained briefly, hope you got it, and there was about interrogative sentences. Guys, here we have a social media platform in front of you on screen. Every lecture when I am giving, whenever I give a lecture, so I explain about our social media platform. It is very important for you guys that you should follow us on Facebook /Zika2019. We have YouTube channels, Engage English and Computer Academy, and WhatsApp we have group. On daily basis, guys, the people they are coming here and they are discussing with each other tenses, active voice, passive voice, direct and indirect. We have great gathering there in WhatsApp. I will suggest you to join WhatsApp group, and thank you so much.